Hello! In this video, we are going to find area and perimeter when we are given a square grid or a rectangle or a square. But first of all, we need to know what is area and perimeter. Area is the amount of space occupied by a two-dimensional object. If we look at this figure here, this purple area, pinkish purple area represents the figure. So the amount of space which is inside this figure is the area of this shape. Perimeter is the distance, total distance around the edges of the shape. So if we start walking around this shape, how much distance have we covered? We count the number of steps. So perimeter is the total distance around the shape. So I hope it is clear. Area is inside the shape. Perimeter is outside the shape. Area is the space occupied by the object, this portion, whereas perimeter is represented by this green line and it is the total distance around the shape. Now let's see how to find area and perimeter when a square grid is given. A square grid is something like this, just like your maths notebook. It has many squares in it. And what is a square? This is one square. A square means the length and the breadth of the shape are equal. So breadth and length are equal. So square is a shape in which length and breadth are equal. So if we have to find the area of the square grid, we simply count the unit squares. What are unit squares? A square in which length is 1 and the breadth is also 1. It is known as a unit square. It could be centimeter or meter. 1 centimeter or 1 meter. Similarly, breadth, which is equal to length, it would be equal to 1 centimeter or 1 meters. So, to find area, what we need to do? Simply count the unit squares. These are unit squares. So, count how many of them are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. So how many squares are there? 42. So what would be the area of this grid? It will be 42. But remember, we need to write unit with area. और एरिया के साथ यूनिट कैसे पता चलेगा? अगर तो इट्स गिवन कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तो एरिया वुड बी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगर हमें ये गिवन हो कि लेंथ 1 मीटर है तो एरिया वुड बी 42 मीटर स्क्वायर. And if nothing is given, we don't know the dimensions कि length centimeters में है, meters में है, inches में है, feet में है. So हम simply लिख देते हैं 42 square units. So the area of this shape is 42 square units. Now, if we need to find the perimeter of this square grid, we just need to count the steps outside the shape. हम किसी भी जगह से शुरू करेंगे. लेट्स सपोज यहां से. हाउ मेनी स्टेप्स डू वी टेक? 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम टर्न करेंगे. 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Again turn 14, 15, 16, 17, 18, 19. Turn 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So perimeter is 26. और perimeter के साथ unit क्या आएगा? It would be either 26 centimeters या फिर 26 meters या फिर इस केस में क्योंकि हमें नहीं पता कि सेंटीमीटर्स है, मीटर्स है, इंचेस है या फीट है, तो 26 यूनिट्स। एरिया के साथ स्क्वायर यूनिट्स आता है, पेरीमीटर के साथ सिर्फ यूनिट आता है, स्क्वायर नहीं आता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। लेट्स सी अनदर केस। पहले हमारे पास एक स्क्वायर ग्रिड थी जिसमें कोई शेप नहीं थी, कोई शेडिंग नहीं हुई थी, तो इसका मतलब था कि हमने पूरे स्क्वायर ग्रिड का ही एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। अब इधर ये है, हमारे पास स्क्वायर ग्रिड तो है लेकिन इसके अंदर शेडिंग हुई भी है। जब शेडिंग हुई भी है तो इट मीन्स कि जो शेडेड पोर्शन है हमने इसका एरिया और इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। अब हमने ग्रिड का नहीं फाइंड करना, अब हमने इस शेप का फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड द एरिया। एज यूजुअल वी विल काउंट द यूनिट स्क्वेयर्स। कितने स्क्वेयर्स हैं इस शेप में जो कि शेडेड हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So area would be 16. और चूंकि हमें यूनिट नहीं यहाँ पे मेंशन, नॉर्मली ऊपर मेंशन होता है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर्स, तो हम यूनिट लिखेंगे 16 स्क्वायर units. Now to find perimeter of the shape, we need to count the steps outside the shape. So let's do it. So मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, इधर से 1 step, then turn 2, 3, 4, 5, 6, 7, turn 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So कितने हमने steps move किया outside the shape? 20. So perimeter would be 20 units. तो अभी तक आपने ये सीखा, एरिया फाइंड करने के लिए हम सिंपली यूनिट स्क्वायर्स को काउंट कर लेंगे कि कितने स्क्वायर्स हैं, और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम शेप के अराउंड वॉक करेंगे कि हम कितने स्टेप्स जो है वो ले रहे हैं। और अगर सिर्फ स्क्वायर ग्रिड होगी, कोई शेडिंग नहीं होगी, तो हमने पूरे स्क्वायर ग्रिड का हमने एरिया फाइंड करना है और या पेरीमीटर फाइंड करना है। और अगर शेडिंग हुई भी होगी, कोई शेप बनी भी होगी, शेप हाईलाइट हुई भी होगी, तो फिर उस केस में हमने शेप का एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना होगा। नाउ वी मूव फॉरवर्ड। ऐसे भी हो सकता है कि हमें स्क्वायर ग्रिड ना गिवन हो और हमें एक रेक्टेंगल गिवन हो। रेक्टेंगल मीन्स एक ऐसी शेप, 4 साइडेड शेप, जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल नहीं होती। अब लेंथ और ब्रेड्थ क्या है? शेप की जो लॉन्गर साइड होती है उसको नॉर्मली हम लेंथ कहते हैं और दूसरी साइड को हम ब्रेड्थ कहते हैं। इफ वी लुक एट दिस रेक्टेंगल, यहाँ है 10 सेंटीमीटर्स और इस तरफ है 5 सेंटीमीटर्स। तो 10 सेंटीमीटर बड़ा है या 5? 10 सेंटीमीटर्स। सो 10 सेंटीमीटर्स इस रेक्टेंगल की लेंथ है और ब्रेड्थ क्या होगी फिर रेक्टेंगल की? 5 सेंटीमीटर्स। तो अगर हमारे पास रेक्टेंगल है और हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना होगा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 10, ब्रेड्थ कितनी है? 5, एंड 10 इंटू 5 इज 50, और यूनिट कौन सा गिवन है? सेंटीमीटर। सो एरिया का क्या यूनिट होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। अब अगर हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, सो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, यानी चारों साइड्स को की मेजरमेंट को ऐड करेंगे।
रेक्टेंगल की जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर इधर है, वो इधर भी 10 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर यहाँ 5 है, यहाँ पे भी 5 होगी। तो अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है, तो हम सारी साइड्स को प्लस करेंगे। ये वाली साइड है 10 प्लस ये वाली साइड है 5 प्लस ये वाली साइड है 10 एंड देन दिस साइड इज 5। तो हम इन सबको प्लस करते हैं। 10 प्लस 5 इज 15, 15 प्लस 10 is 25, 25 plus 5 is 30. So perimeter would be 30 और यूनिट है सेंटीमीटर। So आंसर के साथ हम लिखेंगे सेंटीमीटर। So perimeter of this rectangle is 30 सेंटीमीटर। तो अभी हमने ये देखा कि अगर रेक्टेंगल होगा तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे। सम ऑफ ऑल साइड्स में बेसिकली ये बात है कि अगर रेक्टेंगल की मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है हमने 10 स्टेप्स लिए। यहाँ पे इस डायरेक्शन में हमने 5 स्टेप्स लिए, फिर इस डायरेक्शन में दोबारा 10 स्टेप्स लिए, और इस डायरेक्शन में 5 स्टेप्स लिए। तो हम सम ऑफ ऑल साइड्स करेंगे, तो उसका मतलब यही है कि हमने फिगर के अराउंड वॉक की और देखा कि हमने कितने स्टेप्स लिए। अब लास्ट केस देख लेते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर हो, अब स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, यानी कि 12 सेंटीमीटर, और ये वाली मेजरमेंट भी 12 होगी, और ये वाली मेजरमेंट भी 12 होगी। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। टू फाइंड एरिया फॉर्मूला इज सेम, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। पहले ब्रेड था, क्योंकि लेंथ और ब्रेड डिफरेंट थी। स्क्वायर के केस में लेंथ और ब्रेड दोनों सेम होती हैं, तो हम लेंथ इंटू लेंथ ही लिखते हैं। लेंथ है 12 और ब्रेड भी क्या है 12, एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 12 इज 144, और यूनिट सेंटीमीटर है। सो आंसर के साथ यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। Now to find perimeter, we have to add all the four sides. So एक साइड है 12, दूसरी भी 12, तीसरी भी 12 और चौथी भी 12। 2 plus 2 is 4, 4 plus 2 is 6, 6 plus 2 is 8. 1 plus 1 is 1, plus 1 2, plus 1 3, and plus 1 4. So perimeter would be 48 centimeters. तो स्क्वायर के केस में एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज केसेस। नाउ दिस इज योर क्विज टाइम। पॉज द वीडियो हियर and find the area and perimeter of this shape. अब वर्कआउट कर लें, and whatever your answer is, इसे कमेंट बॉक्स में टाइप इन कर दें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने नहीं किया तो वीडियो पॉज कर दें ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें, एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। If you have a square of length 6 centimeter, what would be the area and perimeter? हिंट ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में पहले स्क्वायर बना लें। स्क्वायर इस तरह से होता है, लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर की लेंथ का मतलब है कि स्क्वायर का मतलब है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, और ये भी 6 होगी। अब तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर लेंगे, राइट? तो सॉल्व इट, पॉज द वीडियो एंड कमेंट योर आंसर डाउन बिलो। Let's move to the next question. Rectangle of length 3 centimeter and breadth 2 centimeter is given. We have to find area and perimeter. Again, rectangle है तो पहले rectangle draw कर लें, क्योंकि once you draw it तो question solve करना आसान हो जाता है। Rectangle है जिसकी length यानी कि longer side is 3 centimeter and breadth यानी कि shorter side is 2 centimeters. So now find the area and the perimeter. Or pause the video, solve this question and comment your answer
in the comments box. So this was all. I hope you have understood this topic. Happy learning.